करूं मैं? यस, हाँ शुरू करो। अच्छा, इतु जी, आप अपना कैमरा थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए ताकि आपका फुल फेस दिखे। हाँ हाँ, यस। अच्छा। मैं शुरू कर रही हूँ। जी। स्वामी चेतनानंद जी has reviewed the lives of the great Ramakrishna devotees and rightly depicted them as they lived with God in his book. Here are two such personalities. Shambhu Charan Mallik. First, Sri Ramakrishna showed us how to live in this modern age with complete renunciation. If one completely depends on God, they are provided with everything. Mother Kali showed Sri Ramakrishna in vision the 5 suppliers who would provide for his needs. Shambhu was one of them. He was from Sindhuriyapatti of Calcutta, working as an agent of a British firm with a good salary and was very generous. He had so much faith in God that once when Sri Ramakrishna forbade him to come on foot to Dakshineshwar as it was risky, he said that since he repeated God's name, no danger could befall him. The master often used to go to his garden on his own, so he felt himself to be special and used to call Sri Ramakrishna as Guru. But master disliked that as it increases ego and binding. Shambhu's devoted wife used to invite Sri Sarada Devi every Tuesday, which is considered to be very auspicious for the worship of Divine Mother. In 1874, when Mother came for the second time to Dakshineshwar, Shambhu arranged to buy land and built a small cottage near the Kali temple to make mother comfortable. The timber for which was supplied by Captain Vishwanath Upadhyay. Yes. The Holy Mother used to cook food there for the master and brought it to the temple garden. One woman was appointed there to help her. Once Shambhu advised the master to take opium for his stomach trouble, but in his absence at that time, the master asked for it from the dispensary supervisor and left. But before he could start, he felt that he is being pulled in the opposite direction. The master found it to be wrong from his side and that it could be taken as falsehood and theft. So he immediately threw it to the dispensary and then he returned without any obstruction. Another time, the master was given some garden fresh pomegranate fruits by Shambhu. But again he felt confused and his nervous system recoiled. After returning those, he became normal. One day, the master, while returning from the same garden with a disciple of Bhairavi Brahmani, who having some supernatural power, got the pitch dark illumined enough to proceed. The master learned about the Christianity from Shambhu, who had a Catholic view of religion. One day at Jadu Mallik's garden house, the master was looking at a picture of Mother Mary with her baby. A light from there entered his heart, and during this mood period, on the third day,
he had a vision of Jesus Christ. Shambhu did many charitable works, but the master disapproved his ideas of philanthropic works as these will bring attachment. He served Thakur and Ma for 4 years. One day the master said to his devotees that God always stands by the devotees. Now, Ramchandra Datta. Good. It was. God provides the needs of his devotees who have sincere faith and devotion. Ramchandra Datta was one among those who have firm belief that whoever came in touch with Sri Ramakrishna was blessed and sanctified by him. He was born in 1851, 30th October in Calcutta, in a Lord Krishna devoted family. After his studies, he was appointed as government assistant quinine examiner. He studied chemistry thoroughly and extracted an antidote for blood dysentery from an indigenous plant which was approved and recommended by the government and leading doctors. As a result, he was appointed a member of the Chemist Association of England and taught military students at the Calcutta Medical College. The death of his young daughter brought a terrible shock to him and was an eye-opener for him. He started visiting religious leaders of the Brahmo Samaj, Christians and Hindus to quench his thirst for God's existence. On 13th November 1879, he went to Sri Ramakrishna with Gopal Chandra Mitra and cousin Mano Mohan Mitra and found him as an embodiment of simplicity. Ram asked many questions to the master and received simple, convincing answers from him, the essence of which was mere wish and faith in one direction is necessary. Ram was not content within. His doubts persisted. Longing for God increased more and more. One night he dreamt that the master gave a mantra to him. He met him the next day excitedly and explained about the dream. The master said, "He who receives divine blessings in a dream is sure to attain liberation." Ram's turbulent mind tasted the efficacy of the mantra. Laying down in the northern veranda of the master's room and repeated the mantra in the mind. Late that night, the master came out, sat near him, and gave him some advice. Ram was very happy. On Saturday, 2nd June 1883, full moon day, Sri Ramakrishna came to Ram's house to feel him blessed. Slowly he made him generous. After that day, Ram went to Dakshineshwar on a cloudy. Ram went to Dakshineshwar on a cloudy, dark night. The master approached him and asked to give the mantra back. And in samadhi, he touched his head with his right foot and showed his chosen deity. From that day, he was exempted from the spiritual disciplines and asked to visit him now and then with a present worth a pice. After this, his mind settled and established the fact that Ramakrishna was an incarnation. Now his intense sadhana started.
including singing till late night, which seemed like noise to the neighbors. Ram, upon the advice of the master, purchased a garden house at Kakudgachi in the middle of 1883. On Wednesday, 26 December 1883, Sri Ramakrishna visited the garden house for the first Yes. time and was very happy. Ram named it as Yogodyan, a mango tree in the garden as Ramakrishna Bhog, and the lake as Ramakrishna Kund, where the master washed his hands and feet, and a Panchavati as the Panchavati um, at the advice of the master. A portion of the master's relics was enshrined under the Tulsi grove, where he bowed down, and a temple was also built. Sri Ramakrishna often used to make jokes, teasing, and having fun with the devotees. Ram started taking notes of the teachings of Sri Ramakrishna, but being discouraged by him, he stopped, and which he published only after Sri Ramakrishna's passing away. According to his advice, when he heard that Ram was taking notes, he said that if Ram thought Lord was writing through him, it will bring immense demand. Otherwise, very little response will come. Ram wrote Sri Ramakrishna Dever Jivan Vrittanto, Tattva Prakashika, Tattva Manjari to spread the Ram Master's teachings. In 1885, Sri Ramakrishna moved to Shampukur when Ram actively arranged for the Master's care. On the Kali Puja day, Ram's idea was to worship Sri Ramakrishna as Mother Kali. Girish started, and all the devotees offered flowers to him, saying victory to Sri Ramakrishna. On first day, 1886, Sri Ramakrishna blessed many devotees, saying, "Be illumined." Ram was one of them. Some parts of the relics of Sri Ramakrishna was installed at Yogodhan after the cremation, which was a week prior to Janmashtami. This is the main festival at Yogodhan. Now, here is the end. Right. Very good. Very good. Very Okay, good. thank you. Well done. Well done. Okay. Thank you. Now, we can have questions. I had no time, Yes, so I Maharaj. could not make the questions because I thought that I will send it in the Saturday, so that is bad. Otherwise, I could Exactly. have found. No, this time I'm disappointed with questions, you know. Today, this time, I am disappointed with questions. I already told in the beginning. Some questions are not good. Some just in 5 minutes, the questions have been written. I said like this. So please give more attention to have proper question. If that's why, you know, it is true when there is a biography, so it is difficult to get questions. When if it is article, philosophical article, you can get more questions. But still, we have decided to continue this biographical. If there is a problem, we will think about it later on. Okay. Pranam Maharaj. So, thank you. Thank you. Thank you. Now, questions? Yes. चलो कौन बोल रहा है? सुबीर मजुमदार. जो पहले आए वो पहले बताएंगे. प्रणाम महाराज जी. मुझे मेरे हाँ भाई हाँ. पहला क्वेश्चन महाराज जी,
On page 75, Thakur said, it's in the end of the first paragraph. After realizing him, one may, through his grace, become his instrument, building many hospitals and dispensaries. My question is, what kind of realization is Thakur talking about? Because Thakur is saying कि जब realization हो जाएगा, then he can make hospitals and dispensaries. अभी नहीं करना है. But My by question is, what realization, kind of realization realization is Thakur talking about? As usually yes, after realizing God, realization. there is, उसके बाद तो कोई desire रहता ही नहीं No, है. no, ऐसा नहीं. जी महाराज. Realization here is not that a Thakur has appeared and is telling now you start doing it. You sincerely feel हाँ. that I am now the instrument of Sri Ramakrishna, of the master. अच्छा, that is the real. I am the instrument, he is getting it done. हाँ. It is not out of my own willing that I am doing. So this is the way it must be. Okay, so here when he says realization, it means when he realizes that he has become the instrument of God, only then. Ah, It can be compared to what he told Ramchandra Datta also, when he said when you realize that you are being advocated by the God to write, only then you write. yes. Same thing, right? Wait a minute. Swami Vivek, and see, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda used to remain merged in Nirvikal Samadhi. And Thakur said, you kaaj karte ho, you will have to do work. Isn't it? Yes, Maharaj. So, वो कहते हैं अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहे उसे करो. That is the point. Okay. First get established and in spirituality. Right. That does not mean having God realization. I get it, Maharaj. Getting fully established. Getting established to certain extent. In the same page, Maharaj, next question, in the next paragraph, Thakur says, what riches can you offer God? This was when Shambhu Charan Malik wanted to offer all his riches to God. So my question is, why is Thakur dissuading him from donating riches? वो मना क्यों कर रहे हैं उनको देने के लिए? इसे ये अद्भुत क्या होता है, क्या कैसे उन्होंने उसको वो किया है? We consider rich people consider that they are superior. The feeling of superiority in the rich mind. कि हम जो है वो गरीब लोगों से सुपीरियर हैं. अच्छा. तो इसको this striking at this specific mentality of the rich people, that we are superior to the poor people. ये that is उसको कहने के लिए बात है. Okay, so there is a question of ego. Question of ego. Question of ego. Ego is there, that is why he is asking him not to do it. On page 77, first paragraph, Maharaj, it is said, faith removes worry, anxiety and fear, while devotion makes life sweet and joyous. Can you explain this, Maharaj? वो दो क्या है कि you begin with faith and you end with devotion. Okay. Devotion हुआ भक्ति. Okay. तो रिवो में विश्वास तो है, दिन भर काम करेंगे, भक्ति थोड़ी करते हैं लोग, लेकिन पक्का विश्वास है कि भगवान है. That is the difference between devotion. जो ये faith है, it gives stability as well as material as well as spiritual life के लिए. And when if you hold on to it later on, devotion has bhakti, love, bhakti. We like to remain close to our Ishta, Leela Chintan, etc. ये तो हुआ devotion. हाँ, devotion मैं समझ गया महाराज, because it is sweet and joyous, that is excellent. But faith कह रहे हैं कि removes worry. Faith जो है आपको सारा भगवान में established है, तो दिन भर संसार का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भक्ति थोड़ी कर रहे हैं. लेकिन किसी ने कहा कि अरे तुम वहां मत जाओ, वहां पे डेंजर है, तो क्या कहा, मैं भगवान का नाम लेकर निकला हूं, क्या मुझे डेंजर हो सकता है?
ये हुआ faith. So that is how fear and anxiety are dealt with. Once you have strong faith हाँ. in God, right? हाँ. Okay. ठीक है, ठीक है. महाराज जी, हम्म, एक मिनट सुन दीजिए। हाँ, महाराज जी, बोलिए. यदि फेथ लेके हम इस संसार में रह सकते हैं, हाँ. यदि लेकिन हमें यदि भगवान का दर्शन नहीं होगा, ओके, भगवान के राइट, दर्शन के लिए फेथ पर्याप्त नहीं है, उसके लिए ओके, तुमको भक्ति लेना पड़ेगा. हाँ, हाँ, it has a बस, start. हाँ, It's a ये start. राइट, राइट महाराज Swamiji, जी। can I ask one question related to bhakti here? देखो, यदि जस्ट आस्क. Swamiji, bhakti, how much ever you try, unless you get grace in your subconscious mind, on your conscious mind, there is bhakti. But for it to go, like for example, when you do japa, you come to know that the subconscious mind is troubled. Listen. Here we are Yes. discussing between faith and devotion, bhakti. Yes. And your question Yes. becomes a new separate question related to bhakti. Better avoid Yes. it. Okay. Sure. Do it other Sure. thing. Sure. Fourth question. Fourth question, Maharaj, on the same page, in the third paragraph, it is written that Ram's attitude of faith Yes. was tremendous, no doubt, but was considered extreme by many. Do you agree with that? If not, then why? No. People, they felt some. No. So some people consider it as extreme. जी महाराज. But आपको क्या we are लगता है? not Was it there, we are not there to with him. We never were with him. How can we judge it? अच्छा. हाँ, लेकिन जितना उन्होंने जो लोग उनके साथ में रहते थे, वो सोचते थे कि ये एक्सट्रीम है. हाँ. और हम जो सोच रहे हैं वो कि पढ़ने पे लगता है ये क्या एक्सट्रीम है कि नहीं है. तो साथ में रह कर डिसाइड करना और पढ़ के डिसाइड करना कैसे होगा? ये दो लोग बहुत स्ट्रांग इन फेथ थे. एक गिरीश चंद्र घोष थे और एक रामचंद्र दत्ता थे. कहते थे ना 110% फेथ और 200% बिलीफ. तो इज दैट हम कैसे जज करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा था क्या? कि क्या हमें ऐसा फेथ डेवलप करना चाहिए? शुड वी हैव दैट काइंड ऑफ फेथ? फेथ तो होनी चाहिए. भक्ति के लिए फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, लेकिन जिस तरह वो कहते थे ना कि तुम अगर इसके पांव का जहाँ पे वो बैठे धूल भी ले लोगे, वो भी तुम्हारे लिए काफी है. या कीड़े मकोड़े भी, तुम कीड़े मकोड़े या जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं वो भी धन्य हो जाते हैं. और इस तरह का फेथ. हाँ, तो ये उनका फेथ है. अब तुम देखो भाई, तुमको कैसा लगता है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं हृदय को पिछले आर्टिकल में, डिस्पाइट बीइंग सो मच इन टच विद हिम, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह से हो ही नहीं पाई. कुछ भी नहीं हुआ होता. हाँ, लेकिन हो सकता है आगे चल के उसको कुछ. और हम लोगों के भी फेथ जो है वो कम ज्यादा होती रहती. कोई ज्यादा हम लोगों की फेथ कोई ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं है. लाइक रामचंद्र दत्ता का तो है ही नहीं. वो तो बड़ी नहीं, हम लोग उसकी सफेद जैसे हो ही नहीं सकते. हाँ. ये एक रेयर एग्जांपल. हाँ. इनफैक्ट रामचंद्र दत्ता और स्वामी जी की एक चीज है कि दे वर बोथ एथिस्ट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे बिकेम बिल्कुली ऑपोजिट. बिकेम दे वेरी स्ट्रांग इन फेथ. यदि ऐसी जब फेथ होती है ना, तो इंडिविजुअल फिर वो इंडिविजुअल नहीं रहता है. इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय. कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. जी महाराज. हाँ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. जी. Next question, Maharaj. On page 82, first paragraph, Thakur says, a typhoid patient, etc. करके उन्होंने कहा है ना. And तो जो डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं
और वो कहते हैं कि इसको इस तरह से पानी नहीं पीना चाहिए सब, because he knows what he is doing. So as a doctor I understand this, but what is the spiritual connotation in this particular thing? नो, उसके बाद में क्या है देखो, बाद में लिखा है ना, तो डॉक्टर ये क्या कहता है, डॉक्टर कहता है, वो वहां पे वो लिखा है ना कि भाई, वो डॉक्टर कहता है, वो कहता है कि मैं बहुत सारा पानी पीऊंगा आराम, तो डॉक्टर बोलता है हाँ पीना पीना जो मर्जी मैं से करना तुम करना, हो तो बाद में तुम जो चाहो जो कर सको। इसी के ऊपर बात हो रही है ना, कौन सा वो पेज पानी नंबर है? वो पानी पीने से मना कर रहा है डॉक्टर, हाँ और वो बहुत पानी पीने के लिए मांग रहे। पेज 82 है हाँ हमारा। हाँ, तो वो भी डॉक्टर भी उसको समझा रहा है, हाँ हाँ हाँ, पीना ना कोई बात नहीं, पियो पियो कोई बात नहीं, या ठहर जाओ पी लेना, डॉक्टर उसको फुसला रहा है, यही है ना? महाराज मैं पढ़ के सुनाता हूँ महाराज एग्जैक्ट। महाराज जी ये सुनाओ कथामृत में भी है। सुनाओ the सुनाओ, right पहले time, सुनाओ ये। मैं 1 मिनट only पढ़ the के doctor सुनाता will intervene. हूँ। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। A typhoid patient in a delirious state clamors to take gallons of water and heaps of rice, but the physician pays no attention, heed to these entreaties, nor does he prescribe medicine at the patient's dictation. He knows what he is doing. ये बात तो मेरे को समझ में आती है एज ए डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पेशेंट तो अपने उस हालात में कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी मांग सकता है, लेकिन एक डॉक्टर को पता होता है कि उसे क्या करना है। लेकिन मैं कह रहा आगे चलो। हूँ इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है? नहीं Here, the next sentence answers. You read further. आगे पढ़ो ना। The connection नेक्स्ट is स्टेटमेंट given. ये है कि At the राम right वाज time, वेरी मच, उसका नेक्स्ट सेंटेंस तो यही है, राम वाज वेरी मच मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड विद श्री रामकृष्ण सिंपल कन्विंसिंग आंसर्स। वो तो एक अलग बात बोल रहा है ना, वो तो राम के बारे में बोल रहा है। तो ना, तो ऊपर का जो फेथ का पोर्शन है ये श्री राम कृष्ण इज एक्सप्लेनिंग। अच्छा, और श्री राम कृष्ण क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके पहले और आगे पहले पूछना देखना पड़ेगा। he said he only intervenes at the right time. The doctor, only when the person is mature, he acts. That's it's given earlier somewhere. There only. क्या पेज नंबर बोलो तो? 82। उससे पहले राम उससे पूछता है महाराज जी कि बट वन मस्ट हैव टेंजिबल प्रूफ अनलेस वी हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, हाउ कैन आवर वीक एंड डाउटिंग माइंड्स हैव फेथ इन हिज एग्जिस्टेंस। तो उसके बाद ये डॉक्टर वाला सेंटेंस है जिसमें वो कहता है कि डॉक्टर अपनी ठीक है, एक मिनट। यानी वो श्री रामकृष्ण कहते हैं, द मोर एडवांस यू वन डायरेक्शन, यू लीव बिहाइंड अपोजिट डायरेक्शन। इफ यू मूव 10 स्टेप टुवर्ड्स ईस्ट, मूव अवे 10 स्टेप टू वेस्ट, बट वन मस्ट हैव टेंजिबल प्रूफ। बिना कैसे हम चलेंगे? Unless we have got tangible proof, then Sri Ramakrishna says, टाइफाइड फीवर भी कहता है मैं नहीं करूंगा। You are also in delirium. श्री रामकृष्ण कहना चाहते थे, you are also in delirium. You want tangible proof of God. कैसे मिलेगा? कोई tangible proof नहीं मिलेगा आपको। If you want to go towards God, you must go. There is no tangible. You are asking tangible proof is like asking water by a typhoid fever. मैं समझ गया महाराज मैं कुछ बोलूं? यहाँ पे हम लोग हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि हमको प्रूफ चाहिए। और यहाँ पे टाइफाइड को इक्वेट, नहीं एक सेकंड, नहीं, टाइफाइड को यहाँ इक्वेट किया जा रहा है एज द भव रोग, जो नहीं, जस्ट एन एग्जांपल। जैसे हम संसार के लिए, what you say is true. You are 100% इन वर्ल्ड में पड़े हुए हो और चाहते हो भगवान का प्रूफ दीजिए, मुझे भगवान का प्रूफ दीजिए। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे टाइफाइड फीवर में से बकबक कर रहे हो तुम,
तुम बिल्कुल चलो बिल्कुल करना चाहो तो करो, नहीं तो Exactly. करो मत, छोड़ो. yes जी we are also in delirium You're right not mature for health. चलो नेक्स्ट. हाँ निवेदिता जी कुछ कह रहे थे निवेदिता जी आप कुछ बोल रहे थे हाँ हाँ अरे मैं निवेदिता, बोल रही हूँ कि ये ठीक है, महाराज नहीं बोल रहे हैं, ओके। मैं चलो बोल नेक्स्ट रही थी क्वेश्चन. ये कथामृत में भी है, जो विकार का रोगी बहुत पानी पानी करके चिल्लाता है, तो इसका सिंबोलिज्म है ये भक्त बहुत सारी चीज इधर, मतलब भक्त मतलब वी आर डिमांडिंग सो मेनी थिंग्स, परंतु भगवान जो भी हमको जरूरत है उतना ही देंगे, ये बोल रहे विकार का रोगी को। विकार का रोगी को हम तो पता चलो नहीं वो क्या तो चाहिए सेम, उसको, हो गया ये हो गया. पानी दो पानी दो चलो इसलिए। नेक्स्ट. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन. महाराज जी हाँ लास्ट क्वेश्चन on page 85 in the last few lines of the first paragraph Thakur says you do not need to practice any more spiritual disciplines ये रामचंद्र दत्ता को बोल रहे हैं वो just come here and see me now and then and bring with you a pice worth of something as a present. Now my question is why did Thakur say that? वो तो उनको कह रहे कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरे पास आते रहो, थोड़ा एक पाइस ले आयो, बस that's it. Because for all the devotees it is expected they continue their spiritual practices who have not पेज realized पेज पेज बोलोगे, पेज कौन सा है? ये पेज 85 पे है महाराज, ये पेज अच्छा. 85 में है वो पहला पैराग्राफ जो है उसके लास्ट कुछ लाइंस में है शायद, वो लंबा पैराग्राफ है, हाँ स्टार्टिंग द डे आफ्टर रामकृष्ण वाला ठीक है ठीक शुरुआत है है, ठीक है ठीक है. उसका लास्ट श्री 3-4 रामकृष्ण लाइन। had taken the form of chosen deity, the form of God that was theirs. हाँ Then Ramakrishna told, you need not to practice anymore. Just come हाँ here and bring हाँ them. हाँ That means that he had achieved the realization. He had इष्ट देवता का दर्शन हो चुका है. आई सी। Now you need not, you just surrender, that's all. अच्छा तो You need ठाकुर not ने do वो spiritual practice. Your spiritual practices have been fulfilled. अच्छा He वो had a ठाकुर ने very high करवा दिया। experience. हाँ, ओ ठाकुर ने कृपा करके उनको दर्शन करवा दिया कि अब तुम कुछ करने की आवश्यकता. हाँ सो दैट वाज एन मैंने एक्सेप्शन तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टेकन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माय. जी 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 Swami ji, ओके. दैट्स ऑल महाराज जी, Thakur, प्रणाम महाराज जी। अच्छा चलो नेक्स्ट भुवन मित्तल. हाँ जी महाराज, एक मिनट, मैंने हाँ बस एक सेकंड। हाँ जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, the book speaks of Ramchandra's generosity. How can we increase our spirit of generosity? by reading the lives of devotees as well as those of others. You have to read the lives of various people who were generous. That you have to do. Secondly, you have to practice also. It is a great virtue. Impress upon this on your mind. If you have to be generous, try to be generous. There are so many people. There were so many devotees who took debt himself and gave to people. ऐसे भी भक्त हुए हैं ना. So you read it and then gradually you read it. If you get an opportunity of meeting them, try to have their company. By that you get the virtue. Second question. And having studied science and modern technology in his youth, Ramchandra was an atheist. I see a lot of my co-workers and people around me calling themselves atheists. Should I behave with humility and respect, or be reserved like I usually am? You avoid them, away from them, be reserved. Yes. Is If it your possible? faith is not strong, Okay. don't try to transform them. Okay. Because there is no benefit of uh, because is it Arguing with possible? them. Okay. They can shake my belief, right? By Yes. debating with me. Okay. So question 3.
Page 83 shows that the master could not ingest food offerings of which a portion was given to someone else first. So once I prepared some food items for a senior Swamiji, but he was unable to eat one of the items. Then I remembered that my mind was agitated due to some argument while making the item. So, how should we make the food fit for offering? But be very careful. When you prepare something to be given to a Swami or to Thakur, you must be very careful while preparing, and the mind must be also peaceful. That these things should not happen. Be careful. Yes. Yes. Right. We should repeat our mantra while preparing the foods. No, mentally be fully concentrated on what you are doing. Okay. That is more important. अच्छा ठीक. Question number 4th. Sri Ramakrishna asked Ramchandra to give back the mantra he received in the dream. So I'm very confused. Can you explain the meaning of giving back the That mantra? is, Sri Ramakrishna has completely taken the responsibility. Given the back the mantra means you don't need to do any spiritual practice. Yes. I have taken the whole responsibility of you. That is the idea. It's a very high thing. Sri Ramakrishna completely takes the whole responsibility of his physical and spiritual life, everything. Just like Holy One Mother of the also. highest sort of a blessing of Sri Ramakrishna. And and Okay? चलो भाई नेक्स्ट दिलीप भाई जी प्रणाम महाराज जी प्रणाम. Question number 1, page 71. Where was Sambhu Charan Malik while Mathur Babu was alive? Sambhu Charan Malik has realized Brahman. कैसे पता चला आपको कि आप कैसे क्यों पूछ रहे हो सब रियलाइज किया ब्रह्मन क्वेश्चन है यहाँ पे कहीं पे तो नहीं आ रहा है नहीं नहीं ये नहीं इतने पढ़ने से महाराज ये जी प्रश्न मेरा ही क्यों पहला उठता है नहीं नहीं मेरा पहला वो प्रश्न ये है कि जब वो पहला प्रश्न ये है कि जब मथुर बाबू थे तब शंभू हाँ मौली अपने घर में रहते थे वो थे ही नहीं वहां पे प्रश्न ही कहाँ उठता है उनका तब हाँ महाराज जी मैं क्वेश्चन बराबर नहीं पूछ पाया. मेरा ये पूछने का अर्थ था कि इनका शंभू चरण मलिक का जब मथुरा बाबू थे उस समय रामकृष्ण देव से इनका कांटेक्ट बना हुआ था या इनके नहीं जाने था के बाद बिल्कुल कोई कहीं कांटेक्ट का कहीं दिखाई होते हैं कहीं लिखा ही नहीं है कांटेक्ट की बात ही सारी जीवनी में ठाकुर की जीवनी में उसके बाद में ही बात प्रश्न उठता नहीं, महाराज जी यानी शंभू चरण मलिक का रामकृष्ण देव से किसी मथुर प्रकार बाबू का के जाने के बाद संबंध हुआ ओके राइट. सीधी पेज बात है नंबर उसमें क्या प्रश्न ही उठना क्यों उठना ही क्यों चाहिए जी 73 पेज नंबर. But as soon as he left Sambhu Charan Malik's garden, he discovered that he could not find his way back to the temple's अच्छा garden. महाराज उसके my पहले question- क्या हुआ था हाँ शंभु उसके आगे तुम पढ़ो उसमें पूरा दिया हुआ है जी पढ़ो 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 तो पता चल जाएगा यस महाराज जी एक सेकंड में पढ़ रहा हूँ. 90 जी. But yes Maharaj ji. But as soon as he left Sambhu's garden, he discovered that he could not find his way back to the temple garden. He felt as if someone were pulling his legs in the opposite direction. Yet when he turned around, he could clearly see Sambhu's place.
Then he realized that Shambhu had said to take the opium from him, not from the supervisor, who had no right to give it without Shambhu's permission. That Sri Ramakrishna's action was wrong on two counts, falsehood and theft. महाराज जी, ये falsehood और अरे theft का समझ वो कब उसने आएगा? कहा था, शंभू ने, सुनो, शंभू ने हाँ, कहा था मैं दवाई दूंगा, मेरे से ले जाना। बराबर है। और ठाकुर ने शंभू के नौकर से ले ली दवाई। हाँ, तो शंभू के नौकर से दवाई ली तो झूठ हो गया ना। ओके जी। और ले जा रहा हूँ बापू कहीं से चोरी, झूठ से बोल के मैं चोरी ले जा रहा हूँ एक चीज, तो चोरी हो गई एक प्रकार की। अच्छा, ठाकुर इतने सेंसिटिव थे। जी जी जी। ये यानी जिससे स्टैंडर्ड एक उनका स्टैंडर्ड ध्यान रखना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रकार की झूठ, छोटी मोटी झूठ और इस प्रकार की चोरी इत्यादि नहीं करें। ओके जी। चलो थर्ड क्वेश्चन। Third question, page number 74. Maharaji, who was Girja? Has he come to elimine Lord Ramakrishna? सुनो सुनो सुनो, हाँ गिरजा जो था, हाँ, पढ़ोगे तो भैरवी ब्राह्मणी का शिष्य उनका था। डिसाइपल था जी। हाँ हाँ, शिष्य था। हाँ, उनका डिसाइपल था, दैट्स राइट। पर ये जो इन कांटेक्ट में आए हैं, तो सिर्फ इसीलिए आए थे कि जब ये रास्ता भूल गए तो इनको रास्ता बताने के लिए, क्योंकि बाद में ये नहीं never वो become- नहीं, अरे वो तो गिरजा वहां पे थे, उसके हाँ साथ में जा रहा है, ठाकुर के पास साथ में जा रहे हैं, अंधेरा जी हो जी गया तो नहीं, उसने he कहा was तुम खड़े रहो, मैं लाइट कर रहा हूँ। he was in अपने Dakshineshwara शरीर से उसने लाइट निकाल दी। that is what I wanted to know. हाँ, हाँ उसकी सिद्धियां थी, सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि इसको। हाँ, तो अच्छा हाँ, ध्यान जब करने से ऐसी बहुत जी सारी सिद्धियों का वर्णन है, पातंजल योग सूत्र में है, जी विभूति जी पुआ पाद नामक एक चैप्टर है पूरा, दिलीप भाई। जी पातंजल योग सूत्र में पूरा चैप्टर है विभूति पाद। विभूति पाठ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तुम पानी पे चल सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, ऐसा हो सकता है, ये जी सिद्धियां जी कहलाती हैं। जी। नहीं, और उसके अब बाद ये में पातंजल योग सूत्र में इन सिद्धियों हाँ को बाधा भी बनाया है, बताया गया है, हाँ, बाधा ये बाधा बताया ऑब्स्ट्रक्शन है। जी जी जी। चलो अच्छा, चलो अब आगे महाराज जी चलो। नहीं नहीं, हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये नेवर बिकम ए, यानी ये भैरवी भान के डिसाइपल थे, लेकिन ये रामकृष्ण देव का कोई भी नहीं थे, डिसाइपल नहीं थे। उससे कोई उस गुरु भाई थे बस। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट ना। पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 4. While the master was looking at it, he felt that the figures of the mother and the child were awakened, and that raised the light of emanated from them and entered his heart. Maharaji, the God or incarnation born at one place, can they move any other place and any other time and in any other person? Maharaji, it is written here that Jesus Christ is a yogi, the loving son of God. What is the, ये दो तीन क्वेश्चन, what is the meaning of yogi and loving son of God? Is he a God or a son of God? सुनो 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 सुनो, जी जब जन्म लेते हैं, जीसा मसीह ने जन्म लिया, हाँ तो वो मानव के रूप में जन्म लिया, तो जी तब उसको हम कहेंगे ये इज सन ऑफ गॉड। जैसे श्री जी राम जी कृष्ण, देखो श्री राम कृष्ण को हम एक और तो भगवान कहते हैं, हाँ और दूसरी ओर भक्त भी तो कहते हैं उनको। भक्त के रूप में रहना सारे जीवन, तो श्री राम कृष्ण में कितनी भक्ति थी, हम लोग भक्ति पढ़ते हैं ना। तो भगवान भक्त
भगवान भक्ति क्यों करेगा महाराज जी? वो तो किसके भक्ति करेगा? भगवान है वो अरे तो वो अपने आप में हाँ, तो सर्वव्यापी है। भगवान ने श्री रामकृष्ण ने कितने साल कठोर तपस्या क्यों की? वो तो भगवान थे। हाँ, बोलो। क्योंकि मनुष्य मनुष्य अवतार लिया इसलिए। हाँ हाँ, यही तो बोल रहे हैं। ईसा मसीह ने जब अवतार लिया, हाँ ईसा ओ, मसीह तो तुम बोल रहे हो ना, भगवान है ईसा मसीह। हाँ जब yes, भगवान ईसा मसीह ने अवतार लिया तब वो सन ऑफ गॉड हो गए। अच्छा, राइट, ओके महाराज जी, बराबर। हाँ, और कहना क्वेश्चन सन नंबर ऑफ गॉड 5 है, और भी कुछ है ना। जी। जीसस और योगी, ही वाज ए ग्रेट हाँ योगी। हाँ, ये यौगिक वाला, यस। हाँ, उनको काफी सिद्धियां थी। योगी थे ना वो तो। उनको पढ़ो तुम, पानी में चल सकते थे। नहीं मालूम, नहीं पढ़ा नहीं महाराज। क्या हाँ, जीसस वो काफी क्राइस्ट? योगी। हाँ, अच्छा, योगी काफी योगी योगी पावर्स थे उनमें। ओके, राइट महाराज, विल सी। हाँ, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 5। द goal is to attain God, not to build wells or schools. What does this mean? Sri Ramakrishna said this repeatedly. Did Sri Ramakrishna discourage acts of charity? अरे पहले भगवान की बात करो, फिर चैरिटी की बात करो, ये वो कह रहे थे श्री। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, वो 6 पे। ओके नहीं हुआ अभी। ओह, जितने भी लोग उनके पास चैरिटी के लिए आते थे, वो कहते थे पहले भगवान को याद करो, उसके बाद चैरिटी करना। हाँ, ये ध्यान रखो। अब तुम अब प्रश्न मत करना कि दीदी इनकरेज दिस चैरिटी। चैरिटी करने वाले बहुत से लोग हैं श्री रामकृष्ण को, उनसे लेना देना नहीं था कुछ भी। वो लोग भगवान अच्छा, में नहीं मानते थे, भगवान को मानेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, चैरिटी करेंगे अपने नाम के लिए। तो थोड़ी तो जी वो जी, दया के लिए श्री रामकृष्ण नहीं पसंद करते थे। बराबर। नहीं महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये बराबर है कि पहले भगवान का नाम लो, बाद में चैरिटी करो। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो 5-50 रुपए चढ़ाते हैं, तो डेट इज व्हाट? ये भक्ति नहीं है, ये चैरिटी। फर्स्ट वी pour money in the box and then we, नहीं, वो भगवान भगवान को देते हैं हम। हाँ, वो ओके, भगवान के प्रणामी है। अच्छा 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 अच्छा, जी। और चैरिटी होगी बाहर जब आओगे तो बैठा होगा कि हम एक दुकान, हाँ एक मकान बनवा, एक स्कूल बनवा रहे हैं, तो उसको आप पैसे हाँ, दे दीजिए, आपको रसीद देगा वो। बराबर। वो भगवान के ओ, सामने 50 रुपए डालते हैं, उसकी रसीद नहीं मिलती। जी, अच्छा अच्छा, ओके महाराज, बहुत क्लैरिटी होगी। जी जी, वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 75। No, question number 6, page number 75. Maharaj ji, what is Devi Sampatti and what is Asuri Sampatti? Can we get Bhagavad Prapti? हमारे जीवन में सद्गुण है, वो देवी संपत्ति है। अच्छा, दया, जी, संयम, शील, हम्म, ये। और क्रोध, अहंकार, मोह, ये हुआ आसुरी संपत्ति। हाँ, right, Maharaj ji. Next question, number 7. What are the challenges Sambhu Charan Malik faced in household life while he was shaping spiritual growth? वो कितने, हाउ मेनी, क्या कौन सा पेज पे हो रहा है? नहीं महाराज जी, ये पेज पे नहीं है, ये जनरल मेरा सवाल था हाँ कि हाँ। एक, हाँ, ऐसा है हाउस तो, होल्डर्स को बहुत जी, तो गृहस्थ को है वो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने में बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, सीधी बात है। बस वन लाइन, प्लेन एंड सिंपल, बट वी कैनॉट फिगर आउट। तो यहाँ जो लिखा तो नहीं है, डिटेल नहीं डिटेल कहाँ लिखा? नहीं 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 नहीं, राइट। ओके महाराज जी, हाँ नाउ माय 2 questions from Ramchandra Dutt.
how Ramchandra Dutt moved into spirituality from interest in science and chemistry, and he was atheist because of the death of his daughter. हाँ बराबर. ठीक है. अच्छा अच्छा. यानी कभी मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा एक झटका पड़ जाता है कि जो उसका जीवन बदल देता है, ये कि हम समझे. बदल देता है. राइट. ओके महाराज जी, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन. 10 लाइन है पेज नंबर 82 की, मैं पढ़ लूं क्या? Gradually Ram began to get a taste of divine bliss through his holy association with the master, and worldly pleasures seemed more and more inspired. He expressed to the master his desire to become a monk, but Sri Ramakrishna dissuaded him, saying nothing should be done on the spur of the moment. God alone knows what he means to do through a particular person. God alone knows what he means to do through a particular person. Maharaj, this is very specific sentence. Further, where will your wife and children be if you leave the world? You must not try to upset the arrangement God has made for you. Everything will come in. Maharaj ji, ये sentence जो है, God has made all the arrangement for you, and you should not upset it. This simple advice temporarily satisfied Ram, but later he raised the subject again. At this, Sri Ramakrishna became stern. What will you gain by renouncing the world? Living a family life is like living a fort. It is easier to fight an enemy from inside a fort than from outside. You will be in a position to renounce the world when you can bestow 3/4 of your mind on God, but not before that. Ram was silenced. He then resolved to be an ideal householder, devotee of God. Maharaj ji, is it applicable to we all Jum Sadhak? Yes. Bhakti. Who is a अभी अरे तुम्हारे मन में पहले बात तो उठे, उसके मन में रिनाउंस करने की बात हो गई थी, इसलिए गया था ठाकुर के पास में. तो तुम्हारे मन में रिनाउंस करने की बात उठेगी तब उसके बराबर बात होगी. बात करना अभी कहाँ है? कैसे तुम्हारी does not allow, does not affect, is not related to you. Okay. राम बाबू के दिमाग में रिनाउंस करने की इच्छा हुई थी तब ये सब बातें उठी थी. तुम्हारे मन में जब उठेगी तब ये बातें. महाराज जी, अच्छा, पर इसके अंदर इन्होंने सॉल्यूशन भी हम लोगों के लिए जैसा बताया है, नथिंग शुड बी डन ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट. नहीं, गॉड हैज मेड फॉर यू, एवरीथिंग विल कम इन टाइम. यानी ईश्वर ने ये व्यवस्था हमारे लिए की है ना, यहाँ तो ये लिखा हुआ है. हाँ, भगवान ने 90% लोगों को गृहस्थ बनाया है, तो भगवान की इच्छा से तो हो रहे हैं. और श्री राम कृष्ण के उपदेश भी 90% भक्तों के लिए हैं. श्री राम कृष्ण कहते हैं एक हाथ से भगवान को पकड़ो और एक हाथ से संसार का काम करो. कहते हैं ना, संसार तो छोड़ने के बोल रहे हैं, छोड़ने के लिए नहीं बोले. अच्छा, अरे हम एक हाथ और तुम, और यहाँ बड़ी बात करेंगे लेकिन एक हाथ से भगवान को नहीं पकड़ेंगे, एक उंगली भी भगवान को नहीं छुएंगे. नहीं और रिनाउंस करने की बात करेंगे. नहीं, अच्छा, ये जो लिखा हुआ है, यू मस्ट नॉट ट्राई टू अपसेट द अरेंजमेंट गॉड हैज मेड फॉर यू. So God had made some arrangement for me. जी. And God has made some arrangement for Dilip भाई. हाँ जी. तुम भगवान की तरफ जाओ, सब अरेंजमेंट तुमको सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. नहीं महाराज, एक बात है, अगर वही बात हम मान ले कि ये भगवान की मर्जी है तभी मैं हाउस होल्डर की लाइफ लीड कर रहा हूँ, तो व्याकुलता तो कभी नहीं आएगा, फिर अपना एफर्ट भी कभी नहीं आएगा. नहीं तो ऐसा है कि 100% जो पूर्ण रूप से 100% इस चीज को मानते हैं ना, वो बहुत बड़े बात होते हैं. फिर वो जीवन में जो चांटे आते हैं ना, उनको भी भगवान की मर्जी से स्वीकार करते हैं. हाँ. ये याद रखिए.
हाँ, हम आधा टाइम तो आधी चीज तो भगवान की मर्जी से मान लेते हैं और आधी चीज हमारी इच्छा से करते हैं. इट्स नॉट सो इजी. महाराज जी, सॉरी, मेरा ये कहना है कि इफ वी आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दिस चांटा एंड एवरीथिंग, तो हम भगवान की मर्जी के खिलाफ भी जाके थोड़ी बहुत कोशिश तो करना चाहिए ना. अरे मन तो देखो भाई, भगवान की मर्जी के लिए, भगवान के मन मर्जी के अनुसार चलने के लिए आधा हाँ. मन भगवान में लगाना पड़ेगा. तो इतना आसान हाँ, नहीं है. जी. हाँ, भगवान की मर्जी बोल रहे हैं, पर सारा जीवन हम भगवान अपनी खुद की मर्जी से चल रहे हैं. नहीं, ओके महाराज जी. जी महाराज जी, बिल्कुल देखिए. हाँ, प्रणाम महाराज जी, मेरे सवाल हो गए. अच्छा, अब किसका बता है? कुंडू. कुंडू. हाँ, है हाँ ना महाराज, पंडित? अभी हाँ. तो कुंडू. हाँ महाराज, एक मिनट. मेरा हाँ. पहला सवाल है महाराज, पेज 74. Jesus then embraced Sri Ramakrishna and merged into his body. हम्म. What is the special significance of one incarnation merging into another? Has it ever happened in other incarnations? We don't hear about this in any other incarnation, as far as we know. And if this is there, actually, that means that Jesus and Ramakrishna are one. Yes. That's all. अच्छा, इतना ही है इसका. बस और कुछ नहीं. It's not very Maharaj, significant. one significance is there because Thakur has established the Chautamot Chautapot. So he is establishing all No, religion are same. no. That's No, why. it's not that. No. It's not that. Huh. That's why he is No. accepting. No. Oh, you are bringing too low. You are bringing Ramakrishna too low. Jotomat is No, you no. are Like that he practiced the Islam also, no? So Islam also he practiced, Christianity also he practiced, so that he can prove that really all are the same. That's why I'm telling. All are Arey, same. here All it is. paths are real. Oh, here this is not the question. All paths are real. Huh? Oh, ये तो No. Then what is the significance of entering the Christian, the race of Jesus Christ in him, so that this he is can. Will you please allow me to talk? हाँ, आप बोलिए. These two are different things. To prove that Jotomat Totomat is all paths are true, this is one thing. And becoming one with Jesus Christ is another thing. They are two different things. जोतोमत तोतोपत तो है, ये ब्रह्मेशानंद भी एक बार थोड़ा सा तपस्या करके और इस्लाम के प्रैक्टिस करके बोल सकता है. दूसरे लोग भी जोतोमत तोतोपत बोल सकते हैं, कोई साधक भी बोल सकता है. लेकिन टू बिकम मर्ज विथ जीसस क्राइस्ट, एक अवतार दूसरे अवतार के साथ एक हो गया. हाँ, यही तो पूछ रहे हैं. अब मैं यही तो वो उल्टी बात कर रही, बीच बीच में उसको डिस्टर्ब कर रही. I am telling that one avatar is same as the other avatar, Baba. One avatar is same avatar. Jesus Christ and Ramakrishna are one. Yes. That is what it is. ठीक महाराज. Yes. That is the significance. Both are That one. is the significance. Yes. Then महाराज, page 75. Yes. This is regarding Shambhucharan's desire to. I always get confused between ethical life and spiritual life. Shambhucharan wanted to do philanthropy, which Sri Thakur did not approve. My question is, does not doing philanthropic activities
lead one finally to spiritual quest? In 90% of people, it does not lead to. अच्छा, तब भी ठाकुर ने अप्रूव नहीं कर रहे हैं इसको. ये ऐसा है, आप महात्मा गांधी के लाइफ में मोरालिटी, एथिकल लाइफ is intense, but it's no Yes. mystic life. So keep them different, separate. अच्छा. Then They page are 17. related. They are related because without ethical life, you cannot get spiritual life. जी हाँ, यही तो कंफ्यूजन है महाराज. मतलब मेरे कहना नहीं, है थोड़ा सा जैसे मैं to a certain extent you have to practice morality. एथिकल लाइफ में तो झूठ भी बोलेंगे, बदमाशी भी करेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ होगी, ये तो नहीं होगा ना. ये बात. तो मैं वही ठीक, बोल ठीक, रहा हूँ कि एज ए ठीक, फर्स्ट स्टेप, जैसे आज मैं जो हूँ, एज ए फर्स्ट स्टेप मैं बोलूं कि आई विल बी एन एथिकल मैन, आई विल डू फिलैंथ्रोपी, आई विल डू गुड थिंग्स, ये कम से कम मेरे प्रेजेंट स्टेट से एक कदम तो आगे बढ़े ना, ये मैं बोल Yes, रहा yes, True. yes, So that is true. yes. हूँ. यस मैम. But majority of the society wants most of the people to be one step higher than where they are. But society does not bother about spiritual experiences and all. ओके सर. Maharaj ji, ethical life and philanthropy are totally different things, because a person can be philanthropical yet That is also, yes, not true. ethical. What you are saying is very true. Very true. Next. Then page 79, man. Ramachandra Datta's enthusiasm for science and modern knowledge made him an atheist. Though Yes. we are not atheists, we also lack faith and suspicious by nature. He changed when misfortune struck him. Is there no other way to gain faith? Holy company. Reading of scriptures. Is it okay? You are not listening? Sound I is am not listening, going. Maharaj. नहीं, इसके So मतलब हुआ other कि ways are there. Holy company, reading of religious books, your faith will increase. और मतलब विवेक से नहीं होता है महाराज. विवेक भी आवश्यक है. मैंने उसमें लिखा था, मैंने विवेक भी है, but more than, because vivek becomes like of it is faith and vivek are two entirely different things. अच्छा महाराज. But when इसको you एक बार go थोड़ा to सा religion, समझाइए महाराज. हाँ, ये तीन बातें हुई ना, विचार, और मैंने दो बातें और बताई हैं, आध्यात्मिक साहित्य का साधु संग. अध्ययन, साधु संग. तो साधु संग और आध्यात्मिक एक वचन, ये डायरेक्ट है. विचार में एक समस्या ये है कि विचार बीच में भटक सकता है. अच्छा. हाँ, विचार करते करते एग्जैक्टली विचार, ऑपोजिट विचार भी आर्ग्यूमेंट्स काफी सीरियस और स्ट्रांग होते हैं. इसलिए ये वैसे विचार मैंने भी सजेस्ट किया. हाँ, संस्कार भी होते हैं, पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं कि वो नहीं, यहाँ तो संस्कार की बात अभी नहीं हो रही. वो तो पहले संस्कार की बात होगी तो फेथ अपने आप होगी रहेगी. नहीं, मैंने बोला था जैसे हमारा मिसफॉर्चून टचवुड कुछ नहीं हुआ, तो इसके मतलब फेथ अगर डेवलप करना, फेथ तो है नहीं, तो डेवलप करना है साधु संग एंड सदग्रंथ पाठ, ठीक. उसके बाद विचार, ऑफ कोर्स विचार में यही प्रॉब्लम है कि विचार दूसरी दिशा में भी ले जा सकता है. ठीक महाराज. Then page 85. Again, I also did not understand why did Sri Ramakrishna take back the mantram from Ramachandra? Because that is he has done the highest blessings to him.
You need not do anything, I will do everything for you. ये भक्त मैं और तुम्हारा भगवान के बीच में हाँ, भगवान ने भक्त पर बहुत सबसे बड़ी कृपा की कि तुमको कुछ नहीं करना होगा। अच्छा, नहीं, एक तरीके से हाँ, मुझे लगा जैसे ही इज पनिशिंग हिम कि मंत्र दे दो तुम। no, 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 no. अरे, he is the highest blessings he is doing. यही क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है? क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है? Almost without asking. नहीं, तो तभी लगता है महाराज कि फिर हम लोग जैसे ये डिवोटीज की लाइफ पढ़ रहे हैं तो ये कितना बड़ा आधार है और कितना बड़ा आइडियल है, वो भी तो डर सा लगता है कि हम कैसे इसको नहीं फॉलो नहीं नहीं करें। नहीं, ये चीज केवल एक ही व्यक्ति, रेयर व्यक्ति के लिए है। हम This is लोग an के लिए exception. तो मंत्र को पकड़ के रखना ही है। Exception है। ठीक एक्सेप्शन Just एक्सेप्शन रेयर एक्सेप्शन। हाँ, just like Girish Ghosh and Ramchandra Datta, only two हाँ, people. ठीक ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। चलो सतीश वेग। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, माय फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी ने पूछ लिया है बार बार। ठीक है, चलो। Chambu had desired to build hospital and dispensaries and lay his money at the feet हो of गया। poor death. What was तो वो यही आपने बताया कि वो पहले इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए, फिर जो सारे काम कर सकते हैं। बिना इंस्ट्रूमेंट बिना हम जो अध्यात्मिक नहीं हो सकते, फिलांथ्रोपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, ठाकुर forbade Ram from announcing household and instead instructed him to live in the fort. And I hope this is the advice to also. Maharaj, does it mean one can renounce household only when he is able to devote 3/4 of his mind to God? राम को कहा था अरे ना ये तो ठाकुर ने कि होते, अगर 3/4 हाँ वो वेरी हाई स्टेट। ये भी देखना पड़ेगा कि तो आप छोड़ के जाएंगे तो जिनको छोड़ेंगे उनको कौन देखेगा। जी जी महाराज जी, ऐसे ठीक ठीक भक्त होगा ना तो भगवान उनके परिवार को भी देखेंगे। जी जी। बट एज फार एज जब तक ये नहीं होता तब तक ये देखना पड़ेगा। इट इज नॉट सो इजी। जी महाराज, मतलब कि 3/4 माइंड गॉड को डिवाइड कर सकेंगे तो ही हम एलिजिबल होते हैं कि नॉट करने के लिए हाउसहोल्ड के, अदरवाइज यू आर हमारे। कैन नॉट गिव अप दैट रिस्पांसिबिलिटी सो इजीली। जी जी महाराज, दैट इज द हर्डल। Maharaj, next question. Every spiritual seeker has to pass through this dark night of the soul. Yes. The world seems like a desert to Ram. Maharaj, without God's grace, can one not pass through this dark night of the soul? डार्क नाइट मीन्स ये जीवन के स्ट्रगल्स, मानसिक संघर्ष है, ध्यान नहीं हो रहा है, लोग बाहर की कठिनाइयां आ रही हैं, ये सारी जो है आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं सभी के जीवन में आएंगी बाबा। ऊपर यू आर गोइंग टू क्लाइंब ए माउंटेन, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो तुमको कठिनाई नहीं सुनना पड़ेगा क्या? जी महाराज, ये तो सभी के जीवन में आएंगे। किसी के जीवन में आती कम आती, किसी में बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा आती है। Everyone has to pass through। राग द्वेष काम क्रोध इनको दूर करना पड़ेगा। संसार की बाधाएं आएंगी, ये सबके जीवन में आएंगी। जी 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 महाराज, वो क्या होता है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि संसार अच्छा भी नहीं लगता और फिर संसार फिर हम छोड़ भी नहीं सकते। और जैसे उनको लग रहा था कि कई प्रकार की कन्फ्लिक्ट होती है। लक्ष्य के प्रति संबंध में कन्फ्लिक्ट होती है, सामाजिक जीवन के प्रति कन्फ्लिक्ट होती है, ये करें कि वो करें, ये सारी बातें, बहुत सारी जीवन में बाधाएं आती ही हैं, बिना उसके नहीं काम करते। तो ये कैसे दूर होती है महाराज? ठाकुर की स्ट्रगल कृपा द्वारा, से दूर संघर्ष होती के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा। स्ट्रगल करते जाएं, प्रार्थना स्ट्रगल करते रहना कीजिए, पड़ेगा। स्ट्रगल
प्रार्थना कीजिए। अरे हम क्या है, हम खुद बंधते जाते हैं। हम सब पहले दो बातों के कारण, एक तो कई जगह पर आध्यात्मिक जीवन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और बंध जाते हैं, और दूसरी जी हमारी वासनाओं के कारण हम बनते चले जाते हैं। जी जी। Next question, Maharaj. In order to हाँ, meditate on God, one should try at first to think of Him as free for upadhis, limitations. ये किसने Maharaj, लिखा है? what? उल्टा बोल रहे होते। हाँ फर्स्ट जी, ऑफ ऑल थिंक विथ हिम फ्री विथ उपाधिज। तुमने नहीं, ठाकुर ने ऐसा कहा है, उसमें लिखा है महाराज कि नहीं, one should try at first to think of Him as free from upadhis. अच्छा, फिर क्या कहा? फिर कहा है कि अगर नहीं कर सकते तो अवतार के ध्यान करना चाहिए, फिर अवतार के हाँ रहने से काफी सुविधा होती है। जी उन्होंने हाँ, कहा। तो ठीक तो हो गया। तो जी 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 जी। तो बिना अब उपाधि के मतलब कि निराकार का ध्यान करना महाराज। हाँ हाँ निराकार, जी जी जी, वो बहुत मुश्किल हाँ है। ठीक ठीक। हाँ, इसलिए बोला ठाकुर ने कि अवतार का जी ध्यान करो। जी महाराज। हमारे लास्ट क्वेश्चन, when the devotees prepared for Kali Puja by Thakur, there was no image of Kali there. उनमें उसमें लिखा है कि महाराज there was no image of Kali there. वो कैसे महाराज? तो क्या वो ठाकर का ये ही पूजा करना चाहते? हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। पहले वो क्या है, वो ऐसा है कि पूजा की व्यवस्था कर लेते हैं, सब आसन वगैरह सब चीजें लगा लेते हैं, और एक फूल रख देते हैं। एक फूल को उसमें काली का ध्यान करते हैं, यही काली है। ये प्रतीक उपासना कहते हैं। अच्छा, और जब ये राइट कर राइट। रहे थे तो ठाकुर में काली का आविर्भाव हो गया। तब उन्होंने साकरा कर रहा तो काली को ठाकुर को लगा पूजा करती। राइट राइट महाराज। बस इतने क्वेश्चन थे मेरे पास। थैंक यू। अच्छा प्रणाम महाराज। अच्छा, शिवानी। हाँ, प्रणाम महाराज। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पेज नंबर 74, third paragraph. In the parlor of this house there were many pictures of holy persons, including one of the Virgin Mary with the child Jesus. ये वाला पैराग्राफ है, go to the temple to salute the Divine Mother. Why did the Thakur not go to the temple for 3 days? उसमें लिखा है ना, वो नहीं गए मंदिर। 3 दिन तक इस जीसस के मूड में रहे, वो क्रिश्चियन बन गए 3 दिन तक। जी मेंटली 3 दिन तक श्री रामकृष्ण क्राइस्ट क्रिश्चियन बन गए थे। तो क्रिश्चियन लोग तो मंदिर में नहीं जाते, मूर्ति पूजा नहीं करते, इसलिए नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो महाराज। हाँ जी, हाँ देखो तो क्वेश्चन 2, पेज नंबर 77, थर्ड पैराग्राफ. गॉड एंड टेक द डस्ट ऑफ, पूरा पढ़ूं क्या? पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा। हाँ जी. Go and take the dust of the feet of the coachman who drove the master. Go and take the dust of the feet of the sweeper of Dakshineshwar who saw the master. This will make your life pure and blessed. So my question is this true at present also? मतलब जो भी devotees ऐसे जाते हैं और उनकी धूल टच करने। अब कहाँ ठाकुर, अब तो ठाकुर नहीं है। हाँ जी, अब तो ठाकुर नहीं है, अब तो इट डज नॉट अप्लाई नाउ। ठीक है। हाँ, तो अभी अप्लाई कैसे होगा? Next, third question, page 80, paragraph 2. Grief is an eye-opener which forces a person to face the harsh realities of life. The death of his young daughter was a terrible shock to Ram, and a great change came over his life.
महाराज यहाँ तो डेथ की बात कर रहे हैं ना, मेरा मतलब है कि ग्रीफ किसी और तरीके का भी हो सकता है। तो कई बार ही वो फील होता है कि जैसे मतलब बार बार सेम सिचुएशन आ रही है तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें, मतलब कुछ कर नहीं सकते, कुछ होता भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा आप बताइए। नहीं नहीं, क्या बताना है, लोगों के जीवन में ग्रीफ आती है तो क्या फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में। तो जैसे के जैसे है वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनके जीवन में ग्रीफ के कारण कोई वैराग्य या संसार से विरक्ति कहाँ आती है। वो ऊंट का जो कुछ एग्जाम्पल। नहीं होता है, सुख सुख आते ही रहते हैं और जीवन का फर्क कुछ नहीं पड़ता। वो कैमल का एग्जाम्पल है ना, कैमल एंड थॉर्न्स। हाँ जी। हाँ नहीं, वो तो ठीक है कि वो खाते रहते हैं, वो खून आता रहता है उसके मुंह से, वो ठीक है। पर मैं ये पूछना चाह रही थी, कई चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, तो उससे कुछ मतलब वो सिचुएशंस वैसी ही रहती हैं, तो हाँ, उससे कोई तो क्या चेंज। करो, हाँ अपने 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 मन को अलग रखो। Swamiji, with अरे bhakti, मालिनी, yes, Swamiji, मालिनी, actually grief propels us, रिमेम्बर sorry, रिमेम्बर, मालिनी, मालिनी, yes, you never yes, sorry. ask questions, you go on interfering. It will not do. I'll, sorry, I'm sorry. So शिवानी, हाँ महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 82, नहीं ये पैराग्राफ। क्वेश्चन पूरा हो गया, तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? महाराज थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि जिसमें चेंज नहीं कर सकते हम कुछ भी, तब क्या करना चाहिए फिर? नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम दूसरे में मतलब चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, हम्म तो सहन हम्म करने के बतावा और कोई उपाय नहीं है। हम्म तितिक्षा, तितिक्षा जो है एक सद्गुण है, हम्म और तितिक्षा जीवन में होना चाहिए। तितिक्षा रखो, और संसार में तो होते ही रहेंगे, सुख दुख आते ही रहेंगे, क्या चिंता करते हो। मन को भगवान में रखो, तुम्हारे हम्म सहन शक्ति बढ़ेगी, तो सहन शक्ति बढ़ना भी एक एक प्रकार का सद्गुण ही है। जी ये लेना पड़ेगा इस दृष्टि से, और क्या करना। मालिनी जी भी यही अधिकांश कह रहे हैं। अधिकांश अधिकांश संतों के जीवन में दुख कष्ट तो काफी आए थे, हम्म तो उसको सहन करना पड़ेगा। अब ठीक है मन को महाराज। याद रखो कि संसार में यही दुखी है, जब अपना मन अपने भगवान में रखो बाबा। हाँ। जी, दुख तो है संसार में है तो। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, 82 पेज नंबर, Yes. हाँ, हाँ। यस, थर्ड पैराग्राफ। One night he dreamed that he took his bath in a familiar pond, and that Sri Ramakrishna then initiated him with a sacred mantram and asked him to repeat it 100 times every day after his bath. As soon as Ram woke up, he felt that his whole body was pulsating with bliss. The next morning, he rushed to Dakshineshwar and related his dream to the master. At this, Sri Ramakrishna joyfully said, "He who receives divine blessings in a dream is sure to attain liberation." तो माय क्वेश्चन इज रिलेटेड विद ड्रीम ओनली। यहाँ तो उन्होंने मंत्र दीक्षा दे दी, तो और वही थे उनको आंसर देने के लिए, बट अदरवाइज इस तरह के ड्रीम्स से कुछ लेसन मिलता है, मतलब उसमें कुछ अच्छे, सच्चाई इस हो? यदि भगवान के या आध्यात्मिक यदि स्वप्न होवे, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जीवन, साधना का जीवन जो है मानसिक स्तर पर ही तो होता है। हाँ तो जी। मानसिक दृष्टि से, हाँ, मानसिक ये चीज जो है मानसिक स्तर पर हो रही है, ड्रीम में हो रही है, यानी मानसिक स्तर पर हो रही है, जी, और उसमें कुछ अच्छी चीज मिलती है, तो ये अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। ठीक है और महाराज। उसी प्रकार से ये भी कहा जाता है हम्म
कि कोई अगर बुरा मंत्र मिला, अपवित्र मंत्र मिला, यानी अपवित्र कार्य किया, तो ये भी बुरा, बहुत बुरा मानते। मतलब ये है कि तुम्हारे मन के अंदर अपवित्र बातें हैं, बाहरी स्तर पर नहीं है लेकिन मन में खराब बातें हैं, सावधान हो जाओ। तो इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे बुरे शुभ अशुभ मंत्रों का महत्व है, स्वप्नों का महत्व है। ठीक है महाराज, मुझे वो बहुत आते हैं अच्छे। इंडिकेशन दे देते हैं कि भाई तुम्हारा मन किस दिशा में चलता है। महाराज, मैं एक प्रश्न पूछूं कि वो रामचंद्र दत्ता से मंत्र को लौटा लिया क्यों? वो हो गई, बात हो गई है, ऑलरेडी फिनिश, ऑलरेडी आंसर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए महाराज। यस। पेज 86। Yes. He helped students financially, even to the extent of providing free board and free board and lodging in his own home. But Ram's main interest was in arranging kirtan, devotional singing, every evening in his home and feeding the 30 or so participants. So my question is कि we should also keep on doing these kind of things if get the chance. Yes, yes. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, लास्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 90। The remaining portion was installed at the Kangurgachi Yogodhyana on Janmashtami, the birth anniversary of Sri Krishna, which fell that year a week after the master's passing away. Ram took the initiative and immediately arranged for regular worship of the relics. Since then, Janmashtami has been observed every year as the main festival day of Yogodhyana. तो महाराज, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जन्माष्टमी से रिलेटेड जो इन्होंने बोला है कि वो फिर एवरी ईयर ऑब्जर्व करने लग गए, तो वो क्या, वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ है इसमें कि जन्माष्टमी तो अरे भाई, जन्माष्टमी तो यूं भी मनाई जाती है। हाँ, ऑलरेडी जन्माष्टमी तो हमेशा मनाई जाती है। हाँ जी, वो उन्होंने जन्माष्टमी में एक नई चीज कर ली, तो उनके लिए दूसरा अधिक महत्व हो गया, और कुछ नहीं, खास बात कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, दैट्स ऑल महाराज, प्रणाम। एनीवन एल्स? देवाशीष महाराज, मेरा प्रश्न पूछूं क्या? देवाशीष मेरी प्रश्न देवाशीष महाराज मैंने भेजा था पर आपको मिला नहीं, मैं पूछूं क्या? प्लीज, तुमने पहली बात यह है कि इस प्रकार से नहीं करना। लास्ट मोमेंट पे आप प्रश्न पूछ रहे हो, या ट्रेन में हो या कभी कहीं पर भी हो, फिर मत पूछना, ऐसा नहीं चलता बाबा। मैं तुम्हारे प्रश्नों को पूरी तरह पढ़ भी नहीं सका हूं। शाम को 6 बजे या 8 में मिले हैं। अब तुम चाहो तो पूछ लो, तो डिस्कस कर लेंगे। जा नहीं रहा था महाराज, आपके फोन में जा नहीं रहा था, वो एक्सटेम्पोर फोन पर जा नहीं रहा था, मैंने तो अरे इतने लोगों के तो प्रश्न आए, इतने लोगों के तो प्रश्न मेरे पास आए हैं, तीनों है। देयर आर 3 वेज, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, वो सब कितना है ना, व्हाट्सएप है, ईमेल है, और बहुत सारे तो जो है ना ये और उसमें आ जाते हैं, अपने मेल क्या में कहते हैं उसको, मेल में आ जाते व्हाट्सएप और मेल दोनों पे हम दे देते हैं। मेल में मैंने भेजा था। अरे सिंपल जिसे कहते हैं ना, वो टॉक जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें आ जाते हैं। पूछो जल्दी पूछो। ठीक है, मैं भी भेजा था। पूछो शिवानी, पूछो, अरे निवेदिता पूछो। हाँ, मेरा पहला जो प्रश्न है वो है
हाँ, पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन मेंटली। मानसिक त्याग यानी संसार में रहो, नंबर अनासक्त रहना। संसार मेंटल रिनंसिएशन मीन्स अनासक्ति, डिटरमेंट, मेंटल अनासक्ति। ठाकुर कितने दृष्टांत है। ठाकुर बोला संसार में रहो दासी एक की घर तरह। की दासी की तरह, है ना। जी हाँ, तो ये हो ठीक गया है, ठीक है। हाँ। दूसरा प्रश्न है हाउ could Shambhu Malik understand Thakur is an avatar and his wife even worship Ma Sharada on every Tuesday in spite of believing the Christianity? ये पूछना। आई डोंट नो कैसे हुआ उनको दिमाग, कैसे ये बात उनको समझ में आई, पता नहीं चला, मालूम नहीं कैसे हुआ। अच्छा अच्छा, तीसरा प्रश्न है why Holy Mother stay in Shambhu Malik's house for 1 year only and then came back to Nahabad? Could there might have been some difficulty, some problem must have been there for that we don't know. दूर होगा इसलिए शायद। चलो so नेक्स्ट fourth question है Thakur was dead against of Vibhuti, then why did he take help of Girja? Page number 74. Very interesting question. He was against Vibhuti. Why did he take very, very, very interesting question? I can't answer. Very interesting, very good question. उसके बाद है कि next question is in the modern age what is the role of studying Shastra? जो devotees जो साधक है तो उनके लिए शास्त्र पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? जो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। वचनामृत क्योंकि नहीं हम पढ़ोगे देखते क्या? हैं नहीं वचनामृत को छोड़कर बाकी शास्त्र। क्या ऐसे रामकृष्ण साहित्य, विवेकानंद साहित्य पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाँ, दो को छोड़कर महाराज बाकी जो शास्त्र है दो को उपनिषद वगैरह वो तो उपनिषद को नहीं पढ़ोगे, विवेक चूड़ामणि को नहीं पढ़ोगे। वही पूछ ये रहे सब हैं किताबें हमारे जरूरी शास्त्र, है। हमारे सब आचार्यों ने कहा है। ये क्या बात है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीजें। नहीं, हम देखते हैं कभी कभी सिर्फ भक्ति होने से ही सब हो जाता है। अरे कहाँ भक्ति होती है, खाना पीना मजा करना है सब, और भक्ति हो रही है। तपस्या नहीं है जीवन में, भक्ति हो रही है। बिना तपस्या के तक भक्ति होती है क्या? यम नियम आसन टाइम के बिना अच्छा, भक्ति होती है क्या? हॉस्पिटल वाला तो आपने बोल ही दिया है। हॉस्पिटल का आपने बोल दिया है। हॉस्पिटल जो जदू मल्लिक को बोला था ना, हॉस्पिटल पहले आप रियलाइज हो उसके बाद ही हॉस्पिटल बनाना, वो तो आपने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है उसके बाद वो डार्क नाइट ऑफ सोल, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? वो तो बोल दिया ऑलरेडी। अरे डार्क नाइट, अरे जीवन में समस्याएं, बाधाएं, इनको डार्क नाइट कहा जाता है। वो सबके जीवन में आती है, सबको सहन करना पड़ता है। मैं क्या पूछ रही थी कि ये आध्यात्मिक साधना में थोड़ा आगे जाने से ये आता है कि शुरू से ही आता है, ये पूछ रही थी। हमेशा आता है, पर याद रखो, मैं तो यहाँ तक कहूंगा, आध्यात्मिक जीवन बढ़िया चल रहा है, कुछ डिफिकल्टी नहीं हो रही तो समझ लो कुछ प्रॉब्लम है जी। कहीं ना कहीं तुम फंस रहे हो। जस्ट द अपोजिट। जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो बाधाएं आएगी, पहाड़ चढ़ने में बाधाएं आएगी। नीचे जमीन में आराम से घूम फिर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं होता। सारा जीवन निकल जाता है, कुछ नहीं। ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा एक
एक जूम मीटिंग कर ली, सप्ताह में एक दिन जूम मीटिंग कर ली, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होने वाला। महाराज दूसरा संघर्ष करना प्रश्न पड़ता है है। जो हाँ दूसरा जी प्रश्न है, रामचंद्र दत्त को इतने संशय आते थे, डाउट आफ्टर डाउट्स आते थे, फिर वो yes. कैसे ठाकुर ने इतना मतलब रियलाइज हो जाए, उनको मंत्र भी ले लिया, ये कैसे संभव हो सकता है वो बताइए। तो क्या वो डाउट हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो आंतरिक जिज्ञासु थे, No. आंतरिक केवल सुपरफिशियल डाउट नहीं थे, वो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन समझना चाहते थे और बढ़ना चाहते थे, इसलिए हाँ हाँ हाँ, बस हो गए महाराज यही प्रश्न। ठीक महाराज जी मेरा क्वेश्चन ठीक आपको है। मिला है महाराज? आपके महाराज जी तीनों प्रश्न जो हैं वो फुलिश है, मिले मिक्स्ड अप है। पढ़िए, अभी नहीं बताते हैं, पढ़िए महाराज जी, पहला मैं 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन मुझे बताइए। Sri Ramakrishna could not bear to be addressed as Guru, Father, or Master because these terms generally inflate a person's ego and bind him. Why did Sri Ramakrishna tell Shambhu Malik who is the Guru and who is the disciple and what is the meaning of the same? But this is only one question I have. these two things are entirely different reference. Everywhere Guru word will be coming, you will make mix with wherever Sri Ramakrishna has spoken of Guru, so you make Sri Ramakrishna told that, Sri Ramakrishna told that. These two things have been told entirely in different reference. Don't mix them up. So Maharaj, One is page number told Sri 72. Ramakrishna. Sri Ramakrishna could not bear to be called Guru, isn't it? Yes. हाँ. Now, is it? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि because these terms, wait. He said to Shambhu, who is the Guru and who is the disciple? Yes, You are my इसका Guru. मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं, मतलब ये है कि don't give importance to the word Guru. That is the point. That's all. No, who is the Guru, who is the disciple? मतलब disciple बीच में गुरु हो जाता है क्या? That's right. He's बार why are you talking repeatedly Guru? अरे छोड़ो, who is the disciple, who is the Guru? कौन गुरु कौन you are चेला, my Guru. ये भी कहना चाहते थे, कौन गुरु कौन चेला। He is giving no importance to this. That is why Okay. it is nothing else. Okay, thank you महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। सतीश, वेग हो गया तुम्हारा? जी महाराज। और कोई बचा तो नहीं है? नहीं और कोई। भाई अब आगे से नेक्स्ट टाइम से जरा पहले भेजा करिए। जी महाराज जी। और पूरा किताब पढ़ के, the idea is that by that you read the whole of the article. Yes. कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, मेरे को मालूम है, एक पैराग्राफ में से या लास्ट एक पेज में से 4 आर्टिकल क्वेश्चन निकाल के भेज दिए, बस खत्म हो गया। ऐसा नहीं करो महाराज, 2 बार पढ़ते हैं हम, फिर क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम। अर्पणमस्तु। जय